Welcome back with our NCERT series of 6th class NCERT Ancient Indian History by Romila Thapar. We have finished almost the 9th chapter. We are in the last chapter, in the last class of the 6th class NCERT. ये पिछले जो 9 क्लासेस हैं इसको आप रिवाइज कर सकते हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर सीरियस अबाउट देयर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड. इसमें दो चीजें हैं. दिस क्लास इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. तो इसमें दो क्लासेस है कि इंडियन कल्चर साउथ ईस्ट एशिया कैसे गया, कौन कौन से टेंपल बने, जैसे आपका अंगोरवाट टेंपल है, और इसके साथ जो है पूरा क्रक्स एनसीईआरटी का क्या है. एंड यू विल फाइंड इट अ वेरी यूजफुल एंड यू विल अप्रिशिएट द एनसीईआरटी. 6th क्लास के एनसीईआरटी को आप अप्रिशिएट करोगे, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. सो लेट अस स्टार्ट. इंडियन कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड कवर्ड इन दिस पैसेज. By the 7th century AD, Indian merchants had established maritime trade with Southeast Asia, like Burma, like Malaya, Cambodia, Java, to sell goods and buy spices. Some Indian merchants settled down in the port towns of this region, married local women, and spread Indian culture, custom, especially among towns and court circle. Buddhism and Hinduism gained influence in this region with grand temples like अंगोर वट दैट इज कंबोडिया एंड बोरोबुदुर जो है आपका जावा में बनाया गया. अ ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एपिक स्टोरीज विद लोकल लीजेंड्स occurred, creating new regional literary tradition like Javanized रामायण, लोकल लैंग्वेज में रामायण लिखी गई. while इंडियन कल्चर स्प्रेड ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया रीजन. एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि इंडियन कल्चर स्प्रेड किया और अपना कल्चर छोड़ दिया, अपना कल्चर रिटेन रखा, बट एट द सेम टाइम दे गिव स्पेस, they give ample space to the Indian culture, to the Indian traditions as well. Now this line is very very important. Okay, retain its own tradition as well. Indian traders and missionaries also traveled to China, Central Asia, Tibet, facilitating cultural exchanges through the Silk Route, trade route, etc. Buddhism flourished in China, Central Asia due to this Indian connection. Indian maritime trade extended from East Africa to Persian Gulf and Egypt in the west. Indian maritime trade extended from East Africa to Persia. So in summary, robust maritime and overland trade जो है, जिसकी वजह से चीजें जो है वो बेटर हुई है आपकी. So this is Angkor Wat, Cambodia, and this is Borobudur Java temple जो है ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट है. अरब्स, इसी टाइम पीरियड में अरब्स का भी हमें सिग्निफिकेंस मिलता है. ओके, इस्लाम वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अरब ट्रेडर्स. देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इंडिया में जो इस्लाम आया वो कनकरर ने नहीं लाया, शुरू में वो ट्रेडर्स ने लाया. गोरी गजनी बाद में आए, ट्रेडर्स आए पहले. ट्रेडर्स की वजह से इंडिया में इस्लाम आया. ओके, फॉलोइंग द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया अंडर द प्रॉफिट मोहम्मद इन 712 अरब कनकर्ड सिंध. मोहम्मद बिन कासिम की जो है क़यादत में जो है सिंध पे अटैक किया गया. दाहिर वॉज डिफीटेड. ओके, they maintained political control over Sindh. Sindh was the first region in India where Islam became an important religion due to Arab conquest. On the west coast of India, Arab traders from West Asia established peaceful and trading settlements, living alongside with the local population and participating in maritime trade across Asia. These Arab trading communities lived peacefully, intermarried with the locals, helped to facilitate the spread of Islam through commercial networks rather than just military conquest. So Islam arrived in India through both armed conquest by the Arab army and of course through the Arab traders. Okay, now come with yes or no. So ye you will do by yourself. This is important. Again this is for you. Again very very important. Arab conquered the Malabar coast. No. Muhammad emphasized prayer, generous donation and believe in one God. Yes. Islam stressed division of class and caste. No. Okay, in the 7th century, the religion called Islam. Muhammad was a prophet. The successor of Muhammad was caliph, prophet. This is equal. Okay, prophet and Islam. Okay, now this is ये लास्ट में इस एनसीईआरटी के लास्ट में लिखा हुआ है. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज गौतम बुद्ध, महावीर, बिंदुसार, अजात शत्रु जो अभी हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है. ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है.
फ्रॉम बिटवीन दिस टू दिस टाइम पीरियड। अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा हमने, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में, सेलुकस निकेटर के बारे में, मेगास्थनीस के बारे में जिसने इंडिका लिखी, ओके। बिंदुसार, चंद्रगुप्त सन, अशोक was the greatest ruler, सतकर्णी was a Satvahana ruler, Menander was Indo-Greek ruler, गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहना रूलर, कनिष्क was कुषाण रूलर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रुद्रमन was a शक रूलर, नेदुंजन अदन जो है he was a चेरा रूलर, अशोक घोष was a scholar जिसने बुद्ध चरिता लिखी, he wrote बुद्ध चरिता। चारक जो है he wrote you can say that मेडिसन चारक संहिता लिखी। सुश्रुत जो है ही वो सर्जन है जिसने सुश्रुत संहिता लिखी, ठीक है। देन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फाहिन, देन कालिदास रोट मैनी बुक्स, ओके, बहुत सारी किताबें लिखी कालिदास ने। यज्ञवल्क्य, ऑथर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू लॉ। आर्यभट्ट वाज अ साइंटिस्ट, वारामिहिर वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। देन महेंद्र वर्मन पल्लवा रूलर, पुलकेशिन सेकंड चालुक्यन रूलर, हर्ष वाज great ruler of in Pushyabuddhi dynasty. बाणभट्ट, कदम्बरी, हर्षचरिता, he was a court poet. खुसरो जो है he was Persian king. ह्यूंग सांग, Chinese traveler. विशाखदत्त was a scholar जिसने मुद्राक्ष लिखी। दंडिन was a scholar जिसने 10 कुमार चरित्र लिखी। With this we finished the NCERT of the 6th class. 10 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट। Yes, it includes 10 chapters if I'm not wrong। 9-10 चैप्टर्स हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एंड अगर आपका अच्छे से पढ़ोगे इसमें से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी निकलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।